जी मैम, hello ma'am, thank you. Pressures. Let a number of gases having pressures P1, P2, P3, dash dash and number of molecules and number of molecules and number of molecules N1, N2, small n1, small n2, n3, dash dash in the mixture. If V1 square average, V2 square average, V3 square average, dash dash are the mean square velocities of the molecules of these gases and small m1, n2, small m1, m2, m3 are the masses of the molecules respectively, and they are filled in a container of volume capital V, and they are filled in a container of volume. Sir, board visible नहीं है. Yes बेटा जी, चलो तो ये आ गया बेटे हमारे पास कितना आ गया P1 plus P2 total pressure of the gas is okay, that is the partial individual pressure, okay, that is equal to N kT upon this. If the number of molecules is this, then and let capital N is the number of molecules per mole, let N is the number of molecules per mole, then small n is equal to yes, then small n is equal to mu into capital N. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? एक मोल में कितने हैं कैपिटल एम, और अगर टोटल मोल्स कितने हैं म्यू, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए म्यू है. सो देयरफॉर यू कैन राइट दिस म्यू कैपिटल एन इनटू के इनटू पी अपॉन वी, ओके, इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस s, ओके ओके. म्यू और एन के हमने पढ़ा था इक्वल टू व्हाट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बिकॉज़ k इज इक्वल टू व्हाट n अपॉन r किया 2 दिन पहले. बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इक्वल टू व्हाट n अपॉन r. यस सर. ओ सॉरी नहीं r जब k इतना था r था k अपॉन n, बेटा बोलो नहीं. अच्छा n k is equal to r, so k is equal to r upon n. So yes, k is equal to r upon n. तो ये आगे बेटे हमारे पास कितना n k is equal to capital R, so it is equal to what q into capital R into t upon v. It is equal to what p1 plus p2 plus dash plus this. This is equation number 2. This is equation number 2. And what is the ideal gas equation for mu moles? We know PV is equal to what mu RT. तो P कितना आ गया, तो P is equal to what, तो ये क्या है, इसका मतलब ये क्या है, टोटल प्रेशर है ना. Sum of the pressures, partial pressures exerted by each and every gas that which are contained in that container is equal to mu RT upon V. And we know for mu mole of an ideal gas or perfect gas, we know PV is equal to what mu RT.
तो यहाँ से पी क्या आ गया, वी को ले जाओ नीचे, म्यू आर टी है ना, तो टोटल प्रेशर क्या है पी, और वो प्रेशर है कितना, दैट इज व्हाट लिखा अपने कल स्टेटमेंट है ना, pressure exerted by individual gas. Okay, total pressure is equal to the sum of the pressure exerted by individual non-interacting gases है ना, non-interacting gases, individual non-interacting ideal gas में क्या होगा ये, okay, non-interacting gases. Yes, right on next. Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. Graham's law of diffusion. It states that the rate of diffusion, it states that the rate of diffusion, it states that the rate of diffusion of two gases or gases is inversely proportional to the square root of their density, to the square root of their density. Let small r and r dash, small r and r dash, are the rates of diffusion, of two gases, or the rates of diffusion of the two gases, and rho and rho dash are their densities. Rho and rho dash are their densities. Then r upon r dash is equal to rho dash upon rho root, or rate of diffusion is directly proportional to 1 upon density of the gas. 1 upon density of the gas. Okay? Okay बेटा जी, डिफ्यूजन का पता है मेरे को लग रहा है, आपका नाम क्या बेटा? फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से क्या समझेंगे आप? राग कुर्सी बेटा वो साफ. डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या है, मतलब क्या समझ रहे होंगे इससे आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का? लिसन. Degree of freedom is denoted by small f and it is equal to 3n minus k, where n is the number of molecules, number of atoms in a molecule, and k is the number of independent relations, between those molecules, number of independent relations between those molecules. Yes, बेटा देखो. So for monoatomic gas, मोनोएटॉमिक गैस के लिए बेटे नंबर ऑफ n क्या है? 1. तो मेरा मुझसे क्या रिश्ता है? चाचा भतीजा दादू नानू मासू, मैं अपना हूँ ऐसा कुछ हूँ? मेरा तो k क्या है? 0. वैल्यू ऑफ k इज व्हाट? 0. सो देयरफॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी मोनोएटॉमिक गैस की? 3 into what? 1 minus 0 is equal to 3. ओके. अब 3 एडिशन देखो, नंबर ऑफ डिग्रीज 3 हो गई, मींस अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, देखो ना, here is x axis, here y axis and here is z axis. ये मैंने बताया आप x y z जहां मर्जी लो, ये थोड़ी है कि मैडम शुरू से पढ़ा रही है तो x लेना है y लेना है z लेना. ओके, अब जिस मर्जी लो. अब ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल या तो वो x एक्सिस के अलावा क्या कर सकता है? एनर्जी कैसे लेगा? कैसे लेगा एनर्जी? वॉल्यूम के ऊपर तो डिपेंड करता नहीं, आइडियल गैस है, पोटेंशियल एनर्जी तो उसकी होगी नहीं. कौन सी एनर्जी होगी?
काइनेटिक एनर्जी। तो मान लो अगर इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है vx, तो इट कैन एक्वायर काइनेटिक एनर्जी अलोंग एक्स एक्सिस 1/2 m into vx square, and it can acquire kinetic energy along what y axis, or it can acquire kinetic energy along z। समझ गए ना एक्स वाई। ओके, तो तीन तरह से जो है मोनोटोन में क्या कर सकता है बोल साहब एनर्जी। ओके, और ये देखो लिसन, और अगर ये इसको बोलते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल का मतलब होता है जब बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, अपनी पोजीशन चेंज करती है, उसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। और अगर बॉडी अपनी जगह क्या करती है, घूमती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन। तो एक बॉल है वो अपनी जगह घूम रहा है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो तो वही रहेगा ना। ओके, तो देयरफॉर इसमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगी, और तीनों की होगी ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन का नहीं होता। ओके लिसन, हाँ अगर मैं इस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अगर 5000 केल्विन कर दूं, 5000 केल्विन कर दूं, तो इसमें 2 डिग्री और आ जाती है, कम होता है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन। क्लोरीन जो गैस है, क्लोरीन गैस वो रूम टेम्परेचर के ऊपर वाइब्रेट हो जाती है। ओके समझ गए सर? तो इसके पास कौन सी एनर्जी है, इट हैज ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन 0, वाइब्रेशनल मोशन भी क्या है 0। अभी होगा जब इसका टेम्परेचर इतना हो जाएगा ना 5000। नंबर 2 डायटोमिक, n इक्वल टू k इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब राघव मेरा स्टूडेंट है तो मैं इसका टीचर हुआ ना, रिश्ता तो एक ही है। ओके, सो देयरफॉर f इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा b into 2 minus 1 is equal to what 5। बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से लिसन, बड़े ध्यान से देखना। सिमरन, same role in rotational motion as is played by the mass in, बताया था ना आपको क्रिकेट का। ओके हाँ, क्या बताया था? ओ तेरे को याद रहा, राव द्रविड़ का पेपर आज बेचारा था शरीर में। मतलब देखो जब उन्होंने डिफेंस करना होता है, मतलब फास्ट बॉल आ रही है 150 स्पीड से, और यहाँ पे प्लेयर खड़ा है, यहाँ पे प्लेयर खड़ा है, मैं उससे ज्यादा चला रहा हूँ, मैं बैट बिल्कुल ऐसा है, समझे ना? जो बॉल आ रही है जिस लाइन में, उसी लाइन में बॉल को ऐसे करके, अगर थोड़ा सा बैट के दो क्या करेगा, नहीं समझे? तो इतना तो बॉल में टाइम देख ले, देखा अंकल मैच क्या आ रही है, मैच क्या इतना टाइम होता है, मतलब प्रैक्टिस होती है, बॉलर ने काफी की होती है, बैट्समैन ने काफी की होती है। बॉलर को सफलता नहीं मिलती फिर वो चिढ़ जाता है, चौका छक्का पड़ते चिढ़ गया, तो फिर वो बॉल के साथ टैकलिंग भी चलता करना, कुछ भी करता है। आज बॉल बहुत है, हरभजन सिंह का आज कमाल करके दिखाई दे रहा था सिडनी के मैदान में, ऐसा ऐसा हो गया ना। आज थोड़ी बारिश का हुआ, ठीक है, वो बताते हैं जब मैच स्टार्ट होता है थोड़ा फ्लैट लग रही है नीचे, मेरे को पता फ्लैट का पहले पहाड़ियां होती थी वहां पे। चलो अच्छा लिसन बेटा, तो अच्छा ये आ गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल मोशन में आ गया 1/2 ओमेगा, और इसकी अगर एंगुलर वेलोसिटी कितनी है ओमेगा, तो 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है देखना लिसन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है मास इनटू मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो देखना भला इसका जो मास है, तो ये जो रेडियस है अगर इसको मैं एक्स एक्सिस के अलावा घुमाऊं तो इसका रेडियस कितना है d2, समझे नहीं? और अगर मैं इसको वाई एक्सिस के अलावा घुमाऊं तो फिर रेडियस इतना है, इसका इतना है, इसका इतना है। अब ये जो गैस का मॉलिक्यूल हो फुटबॉल थोड़ी है, दीज आर पॉइंट इन नेचर, और पॉइंट के ऊपर पॉइंट मिला के लाइन बनती है, मेरी बात समझ रहे हो?
लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे और दोनों पॉइंट ऐसे घूम रहे हैं, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 है, कितना है r2, दोनों का मास ये है, तो टोटल कितना मोमेंट होना चाहिए r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ओके। और तीसरा जो होता है, मान लो अगर ट्राइएटॉमिक है तो कितना आएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, बोलो साहब 3 into 3 minus 3, नहीं हाँ 3 आएगा 3 नहीं आएगा सर -2 है। -2, 3 एटम है, 1 2 3 4, एक रिलेशन दूसरा रिलेशन तीसरा रिलेशन। ओके, 2 एटम होंगे तो एक ही होगा, 3 एटम होंगे, एक मैं हूं, एक मेरे डैडी है, एक मेरे दादा है, डैडी का मैं बेटा हूँ, मेरे दादा जो है वो मेरे डैडी दादे के बेटे हैं, और इधर मेरा दादा है, मेरा दादा, तो तीन तीन रिलेशन है, तो कितना आ गया 9 - 3 = 6, 9 - 3 = 6। ओके ठीक है, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, हाँ लिसन, अगर क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर जो गैस का कितना हो जाए 5000 का टेम्परेचर हो जाए, तो गैस जो होती है वो वाइब्रेट कर जाती है, और वाइब्रेशन जब होगी तो कम से कम दूर, वाइब्रेशन का पता कब चलेगा, जब कम से कम एक्स वाई वाई जेड या जेड एक्स लेके ना। ओके, देखो जब वाइब्रेशन होगी तो क्या होगा, ऐसे काम नहीं है, अगर घूम जाता तो घूम जाता है, अगर थोड़ा जाता है फिर आता है, जाता है आता है, इसको वाइब्रेशन बोल देते हैं। ओके हाँ, तो 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम उसके कारण भी आ जाती है। ये आपको समझ आ गया डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक्स एक्सिस के लॉन्ग क्यों नहीं है, because the gas molecules are point in nature, they are elastic spheres and they are point in nature and they are not interacting with each other. Okay, so ये लिखा नहीं है आपने, additional degrees of freedom होती है वाइब्रेशन की when the temperature of a gas reaches 5000 Kelvin. Additional degrees of freedom, additional degrees of freedom of a gas, additional degrees of freedom of a gas due to vibrational motion when the temperature of gas, when the temperature of a gas is about 5000 Kelvin, नीचे स्टार लगा के लिखो बेटा, क्लोरीन गैस acquire vibrational mode, vibrational mode or energy due to vibration even at room temperature. अंडरलाइन करना कि क्लोरीन गैस। ओके, तो क्लोरीन क्या होती है Cl2, 2 मॉलिक्यूल है, तो 5 तो आ जाएंगी इसकी किसके कारण, 3 आएगी काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशन, 2 आएगी किसके कारण रोटेशनल मोशन। ओके, और रूम टेम्परेचर क्या होगी, तो 2 आएगी किसके कारण वाइब्रेशन मोशन के कारण। ओके, तो आपको क्वेश्चन अगर आएगा, इज इट पॉसिबल टू फॉर ए गैस टू हैव 7 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यस, सिंपली कह देना आपने, ठीक है, व्हेन द गैस इज व्हाट डायटोमिक एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज व्हाट more than 5000 Kelvin. Okay, और फिर पूछोगा which gas can acquire even at room temperature 7 degrees of freedom, then which chlorine gas. Okay, जैसे केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, जैसे सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है, थर्ड ऑर्डर की होती है, लेकिन 10 ऑर्डर 15 ऑर्डर होते नहीं है ना, ऐसा पढ़ा मैंने है?